Hello students, again you are welcome on the platform of Sahih Pramod B.Ed College and BSc B.Ed integrated course, and we are taking the online classes of chemistry part 1. Okay, so today's topic is a radial probability distribution curve of 1s, 2s, 3s, 4s and other orbitals. So today's topic is this. Okay, so before the understanding the concept of the radial probability distribution curves, few things need to be understood first. Okay, पहला आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा. As far as concerned the Schrodinger's wave equation which were earlier discussed, so from this wave equation, okay, we have also discussed the significance of psi and psi square. So this curve, this probability curve is related to this psi and psi square. Okay, so ये psi को हम क्या बोलते हैं? इस psi को हम बोलते हैं wave function. Okay, probability wave function. Okay, और radial wave function. इसको हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन. ओके, एंड दिस साई स्क्वायर इट इज कॉल्ड probability. It gives the probability of finding electrons in the orbital. Okay, so these two things gives us the wave function as well as probability of finding electrons in the orbital. So on the basis of this we are going to discuss the radial probability distribution curve. Okay, तो सबसे पहले ये है क्या वो समझिए. What it gives? So basically it gives, you can write down, इसको आप लिख सकते हैं, it gives the nature of probability of finding electrons in the orbital with respect to the distance of electron from the origin, or you can say or nucleus. So it gives the nature of probability of finding electrons in the orbital with respect to the distance of electron from the origin of nucleus. इसका मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे है, ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होने की संभावना है, तो जैसा जैसा हम ये डिस्टेंस चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसका जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी है उस पे उसका क्या नेचर होगा. तो बेसिकली दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 1s, 2s, 3 एंड 4s ऑर्बिटल्स. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. तो यू कैन राइट डाउन दिस. ओके, नाउ उसका जो सिग्निफिकेंस है उसमें हमने एक चीज़ बताया था कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी, उसके बारे में हम बात करेंगे. कंसीडर ए स्फीयर, ओके, spherical shape of this orbit. Okay, this is nucleus, the radius of this is r, the first sphere is r and the second one is r plus dr. So thickness of this is dr. So consider a sphere, or consider concentric spheres of
of bigger radius r plus dr and a smaller radius that is r, or you can say thickness is dr, okay, for which the probability of finding electron is equal to volume of a sphere into psi square. This is the function which gives actual probability of finding electrons. So, volume of a sphere will be 4 pi r square into dr into psi square. This can be derived from the formula 4 upon 3 pi r cube minus 4 upon 3 pi r plus dr whole cube. Since dr is very small, so this will come to 4 pi r square into dr, that is the volume of the sphere into psi square. So this is denoted by d. Okay, तो ये जो d है, d वर्सेस रेडियस, इसके बारे में हमको कर्व ड्रॉ करना है कि जब अपना डिस्टेंस चेंज होगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ रेडियल वेव फंक्शन versus radius or distance between an electron and that of nucleus. So next point is radial probability, radial wave function. Radial wave function. Actually, there are two type of wave, that is angular wave and radial wave, angular and radial, but this angular wave is depend upon theta, that is angle of revolution, and radial is depend upon r. So we are going to discuss only radial function, that's why it is written here radial wave function. So in our syllabus there is no any angular wave function, that's why we are going to discuss radial wave function, and it is nothing but psi. So first of all पहले ये समझना पड़ेगा कि ये psi और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पहला ये समझेंगे. तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ, this is psi called radial wave function, and this is the radius. So the radius of that is radial wave function. So for 1s orbital, for example, if you are taking the 1s orbital or 1s subshell, so graph will be like this, that is so called rectangular hyperbola. Means since this is origin, for example आपका ये अगर ऑर्बिटल है तो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन के आसपास ओके यहाँ पे, ठीक है, इसका जो रेडियल वेव फंक्शन होगा डेट इज साई, ये बहुत अधिक होगा. ओके, और जैसा जैसा हम रेडियस बढ़ाएंगे यानी कि ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, व्हेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. ओके, सो द रेडियल वेव फंक्शन ड्रास्टिकली डिक्रीजेज
okay, and it goes up to, whenever you will continue increase the radius, it will go to infinity. Okay. So radial wave function is maximum near at origin, okay, and it decreases with the increase of r. This is for one subcell, this is for 1s subcell, okay, but the density of the electron will going to decrease. This is for 1s, this is for 1s subcell. So you can write down for 1s subcell, for 1s subcell, the radial wave function is maximum near at origin, and whenever the distance or the radius will increase, it decreases drastically, and with further increase in radius, it goes up to infinity. So 1s सबसेल में इसका जो मैक्सिमम रेडियल वेव फंक्शन साई होगा वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, ओरिजिन के आसपास, और जैसा ही आप रेडियस बढ़ाएंगे तो ये वेव फंक्शन ड्रास्टिकली कम होकर के इन्फिनिटी तक चला जाएगा. दिस इज फॉर 1s सबसेल. नाउ वी विल डिस्कस फॉर अनदर सबसेल दैट इज 2s. तो 2s के साथ क्या होगा वो आप समझिए पहला. ओके, 2s के साथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेडियस एंड दिस इज द रेडियल वेव फंक्शन. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. यू कैन सी ओरिजिन के आसपास ये मैक्सिमम है जैसा आप देख सकते हैं. जैसा ही आप इसको कम करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका जो वेव फंक्शन का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा. ओके, और ये नेगेटिव होगा. नेगेटिव होने के बाद, ठीक है, ये फिर से नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव होते होते बढ़ते बढ़ते फिर से 0 होगा और फिर ये बढ़ेगा. ओके, so the point where the radial wave function becomes 0, it is called radial node. Okay, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे. later on I will give you the definition of this radial node. okay, but आप पहले समझिए कि यहाँ पे कितने नोड हो गए, 1 और 2, यानी कि 2 नोड हो गए, बिकॉज कि 2 पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है वह 0 हो रहा है, और विद फर्दर इंक्रीज इन रेडियस इट विल गो टू इंफिनिटी. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर सिग्मा वर्सेस r. But there is no physical significance of this sigma, as I mentioned in the significance of that is sigma and sigma square. So that's why we have discussed about the sigma square. So sigma square gives the actual probability of finding electrons, यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है वह एक्चुअल वैल्यू देता है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो उसका ग्राफ कैसा होगा उसके बारे में आप देखिए. अभी हमने किसका देखा, साई और नॉट सिग्मा, पार्डन, नॉट सिग्मा, दिस इज साई. ओके, so we will see now the graph of psi square versus radius of 1s
1s subcell. So for 1s subcell, the graph will be same as that of sigma versus r, that is this. But actually this gives the actual density. So sigma square here is known as, sorry, psi square is known as radial probability or probable density. So this psi square gives the density of the electron or probable density of the electron in the orbit. So as soon as you will increase the r, okay, the value of psi square is going to be decreased and take it to infinity. So there is no change of graph of one subcell between, that is psi and radius. This both the case same. Now we will compare now the subcell 2s graph. Okay, तो हमने सबसेल 2s का psi और रेडियस के बीच कैसा निकाला था, आप अगर याद होगा आपको तो ऐसा था जहाँ पे दो नोड्स आते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है. बट व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ psi स्क्वायर वर्सेस रेडियस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो कीप इट इन माइंड. To understand, this graph will be like this. Okay, so आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो नोड है जहां पे रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होता है और यहां पे भी है जहां पे ये वैल्यू 0 होता है. सो इन केस ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियल node where the density of electron becomes 0. So यहाँ भी दो नोड है और यहाँ भी दो नोड है. But what is the difference between two curves? Since the value of psi, that is radial wave function, can be positive or negative or both, but in case of psi square, the value of psi square is always greater than 0, means there will be no value of psi square will be negative. So the graph will be like this. So अभी आप समझ गए, तो आप लिखिए सेकेंड केस में the radial probable density अब ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं 2s के लिए. दिस इज फॉर 2s. नाउ टेक डाउन. सो रेडियल प्रोबेबल डेंसिटी denoted by psi square. Okay, so the graph of psi square versus radius of 1s orbital will be of same nature, whereas for 2s subcell, this is subcell, this is subcell, 1s subcell, 2s subcell, okay, there will be change in graph of psi square versus radius, where the psi square value is always positive whenever radius increases. Two nodes are present
in both cases node is equal to n minus l minus 1. So this is the formula to find out the radial node when you know the principal quantum number as well as एजिमुथल क्वांटम नंबर. यानी कि अगर आपको इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है और एजिमुथल क्वांटम नंबर मालूम है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इस कर्व में रेडियल नोड कितना कम होगा. रेडियल नोड का एक और फार्मूला है, दैट इज पीक माइनस 1. यानी कि अगर ये ग्राफ ड्रॉ होता है जिसमें कि अगर पीक 2 है तो उसका नोड 1 होगा. यानी कि जितना नंबर्स ऑफ पीक होगा उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो दैट विल गिव यू द रेडियल नोड. Okay, so you can take down this also. Radial node is equal to n minus l minus 1, or radial node will be peak minus 1, number of peaks minus 1. Okay, for example, if you have to calculate the radial node for 1s subcell, so what will be the number of node you can easily calculate 1s सब सेल के लिए. अगर आपको कैलकुलेट करना है कि रेडियल नोड कितना होगा तो आप कितना कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे. ठीक है, तो 1s का मतलब होता है n इक्वल टू 1. ओके, एंड फॉर s सब सेल द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0. इफ यू रिमेंबर द टेबल, दैट इज L and subcell, so 0 1 2 3 and subcell is equal to S P D F. So for S subcell the value of L is 0. So when you know the value of N as well as L, so you can find out the radial node that will equal to n minus L minus 1. So this value will be 1 minus 0 minus 1 and that will equal to 0. So whenever you will draw the curve of 1s of probability of finding electrons and that of radius, so in this curve the radial node there will be no node. Okay, there will be no node will be 0. That will see in next topic. और अगर आपको 2s के लिए निकालना है या 2p के लिए निकालना है तो क्या होगा, आप देख सकते हैं. 2p के लिए निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ n विल बी 2 एंड फॉर p द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 1. सो रेडियल नोड कितना होगा, n minus l minus 1 means 2 minus 1 minus 1 that will equal to 0. ओके, और 3d के लिए निकालेंगे तो उसके लिए भी रेडियल नोड 0 होता है और 4f के लिए निकालेंगे तो भी उसका रेडियल नोड 0 होता है. बिकॉज 3d के लिए n का वैल्यू 3 होगा, d का वैल्यू 2 होगा और 4f के लिए n का वैल्यू 4 होगा और सॉरी l है यहाँ पे और l का वैल्यू 3 होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि रेडियल नोड फॉर 1s 2p 3d and 4f is same, that is 0. Okay, so conclusion of this radial node for 1s 2p 3d and 4f is 0. Okay, so अभी रेडियल नोड का आपने समझ लिया होगा. अभी आगे का बात बताएंगे हम, जो मेन कर्व हमको ड्रॉ करना है उसके बारे में अभी बात करेंगे. तो अभी तक हमने देखा रेडियल वेव फंक्शन और डेंसिटी ऑफ और प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ रेडियल वेव, वो हमने देखा, दैट इज साई स्क्वायर और साई के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electrons in the orbital
orbital with respect to the distance or radius. ठीक है, यानी कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज 4 पाई r square into dr, that is volume, and this psi square is nothing but density of that electron. ओके, सो अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है इसके और रेडियस के बीच में. ठीक है, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी और रेडियस यानी कि डिस्टेंस के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, नाउ हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, सो फॉर 1s ऑर्बिटल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ distribution of probability of finding electrons and that of radius. So for 1s subcell or orbital, you can say 1s orbital. तो पहला हमको क्या चाहिए, इसका रेडियल नोड चाहिए. ठीक है, रेडियल नोड क्या हो जाएगा इसका, रेडियल नोड विल बी n माइनस l माइनस 1. सो 1s के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और l का वैल्यू 0. सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसके बीच में रेडियल नोड 0 होगा. ठीक है, और ग्राफ इसका कैसा होगा वो आप देखिए. दैट इज probability of finding electrons, और ये क्या हो गया रेडियस. तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा. ओके, इसको हम बोलेंगे R0. ओके, तो नाउ यू कैन सी देयर इज नो एनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन दिस ग्राफ. मीन्स पहला जो इसका कंडीशन था वो दिख रहा है. ठीक है, नाउ यू कैन सी द हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम. यानी कि अगर आप न्यूक्लियस देखकर ड्राइंग करेंगे तो एट दिस इज कॉल्ड R0. ओके, ये R0 है. ये हाइड्रोजन आइटम अगर आप लेते हैं तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज R0. तो आप देखेंगे कि एट R0 वैल्यू और एट बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम. दैट इज कॉल्ड पीक. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पीक, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है. और जब आप फर्दर रेडियस बढ़ाएंगे यानी कि फर्दर अगर आप दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो इसका प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा. यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक रहेगा और जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन होने की संभावना कम होती जाएगी और ये इंफिनिटी तक हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल. ओके, so you can write down for 1s orbital radial node will be 0 and you can write down in bracket n minus l minus 1 is equal to 1 minus 0 minus 1 is equal to 0. Radial node will be 0 and at R0 and you can take in bracket the Bohr's radius of first orbital of hydrogen atom. The probability of finding electrons is maximum and its reach to
is it's reached to its peak. ओके, यहां तक क्लियर है? यानी कि वो अपने कहां पे चला जाता है? पीक पे पहुंच जाता है. ओके, एंड फर्दर इंक्रीज इन रेडियस एंड फर्दर increase in radius, the probability of finding electron going to decrease and goes up to infinity. ठीक है, और ये जो रेडियस है, ठीक है, इसको हम मैक्सिमम प्रोबेबल रेडियस भी बोलते हैं. मैक्सिमम प्रोबेबल रेडियस. द रेडियस एट व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज मैक्सिमम प्रोबेबल रेडियस. ओके, सो अगर आप रेडियस का फर्दर वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है, सो दिस इज फॉर 1s सबसेल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ ऑफ 2p सबसेल. मैं यहाँ पे 1s का ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, इसका हम देखेंगे बाद में क्या यूज होता है. दैट इज फॉर 1s 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर, और ये रेडियस हो गया. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व फॉर 2p. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका रेडियल नोड. So for 2p, what is the value of n? That is 2. What is the value of l? That is 1. So radial node will be n minus l minus 1 is equal to 2 minus 1 minus will be 0. So there will be radial node will be 0. There is no radial node in between. इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ v किसके जैसा ही होगा? 1s जैसा ही होगा, जिसमें की भी कोई नोड नहीं है. ये ऐसा होगा. नाउ ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस है सेकेंड ऑर्बिटल, यानी कि 2p है. सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का ये रेडियस क्या है? r1 है. अगर आप इस दोनों ग्राफ को देखेंगे तो ये दोनों ग्राफ सेम लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड होता जा रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है वह थोड़ा r0 से बड़ा है. ठीक है, यानी कि ये ब्रॉड होता चला जाएगा. ठीक है, तो ये 1s और 2p का ग्राफ जो है वो लगभग सेम आ रहा है. वनली क्या है, ये दिस बिकम स्लाइटली ब्रॉडर देन दैट ऑफ 1s. नाउ इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3d, okay, so you will find out the radial node. This will also be 0 because the value of n is 3 and l is 2. so radial node इसका भी 0 होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, ये और भी ब्रॉड हो जाएगा. ठीक है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे डी आर इंटू साई स्क्वायर बसेस आर, तो ये 3d का वैल्यू जो होगा, 3d का जो ग्राफ होगा वो सेम एज दैट ऑफ 2p एंड दैट ऑफ 1s, बट ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज broader, more broad than that of 2p and that of 1s. अगर तीनों का अगर हम ग्राफ साथ में ड्रॉ करेंगे, सो कंबाइंड ग्राफ अगर हम 1s 2p एंड 3d का ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है एंड व्हाट इज द सिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज इज दैट नेचर ऑफ द ग्राफ इज आइडेंटिकल एंड व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is that the radius from the origin going to be changed. Now if you see the combined graph
combined graph of 1s, 2p and 3d, this will like this. This is the probability of finding electron. This is the radius. So graph will be like this. This is for 1s, this is for 2p and this is for 3d. Okay, यानी कि this is for 1s, this is for 2p and this is for 3d. If you will draw the graph of 4f, so that will be like this. Okay, so you can easily understand what is the similarity. Similarity क्या है? रेडियल नोड तीनों केस में 0 है, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है. ठीक है, सबका पीक एक ही पीक है, इसमें भी एक 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 पीक है. डिफरेंस क्या है चारों ग्राफ में कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो डिस्टेंस जो है वो दोनों का सबका चेंज हो रहा है. यहाँ पे R0 है, यहाँ पे R1 हो जाएगा, फिर ये R2 हो जाएगा और फिर ये R3 हो जाएगा. Okay, so that is the basic difference among all these graphs. I think this is quite easy to understand what is the difference between 1s, 2p, 3d and 4f orbitals as far as I concern the value of radius. Okay, मुझे लग रहा है ये अभी आपको समझ में आ गया होगा. तो कोई भी अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है प्रोबेबिलिटी वर्सेज रेडियस में, तो सबसे पहले आपको रेडियल नोड निकालना पड़ेगा. तो भी आपको पता चलेगा कि इसमें कितने पिक्स हैं और कितने ट्रफ्स हैं. ट्रफ्स मीन्स दैट इज रेडियल नोड where the probability of finding electrons is 0. Now we are going to draw the graph of probability versus radius for 2s. Let us see 2s. So सबसे पहले रेडियल नोड निकालना पड़ेगा. तो n is equal to 2 because this is 2 and for s l is equal to 0. Okay, so रेडियल नोड क्या हो जाएगा इसका? n minus l minus 1, that is 2 minus 0 minus 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 1. ओके, दैट इज रेडियल नोड कितना हो गया? 1. यानी कि इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें निश्चित रूप से एक नोड तो रहेगा ही, बिकॉज की रेडियल नोड इज 1. तो इसका ग्राफ कैसा होगा आप देखेंगे अगर, दैट इज प्रोबेबिलिटी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर वर्सेज रेडियस. तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ओके, ठीक है. ये किसका है? 2s का. देखिए यहाँ पे एक नोड आया. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहला मैक्सिमम पॉइंट होगा इस रेडियस पे, ये यहाँ पे मैक्सिमम आएगा और इसका पीक यहाँ पे आएगा. ठीक है, यानी कि इस 2s के लिए, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये पहले ऑर्बिटल के लिए और ये दूसरे ऑर्बिटल के लिए है, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0. सो दैट इज कॉल्ड एज ए रेडियल नोड, वी हैव कैलकुलेटेड एज 1. ओके, सो दैट इज R0 एंड दैट विल बी R1. ओके, सो ये 2s का प्रोबेबिलिटी वर्सेज रेडियस का कैसा ग्राफ होगा जिसमें एक नोड होगा, तो ये इसका ग्राफ ऐसा होगा. नाउ यू कैन ट्राई फॉर अनदर ऑर्बिटल दैट इज 3s. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फॉर 3s, सो आपके लिए रेडियल नोड निकालना पड़ेगा. सो रेडियल नोड के लिए n इक्वल टू कितना है? 3 है, और इसका l कितना है? 0 है. सो रेडियल नोड कितना हो जाएगा? n माइनस l माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2. मीन्स सर्टेनली देयर विल बी 2 नोड्स इन बिटवीन ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्सेज रेडियस. 4 पाई
r square. If you will draw the graph, so graph will be like this. So, and this will not touch the axis, this will going to be parallel to the axis. So, there you can see there is two nodes. यानी कि अगर आप 3s का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस नेचर. Okay, and here will be two nodes at these points, at these 2 points, at these 2 points the finding electrons probability is 0. and इसका पिक कितना है देखो 1, 2 और 3. और एक जो दूसरा फॉर्मूला बताया था हमने नोड्स का, नोड्स इज इक्वल टू पिक माइनस 1. तो इसमें पिक कितना है 3 है और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. सो देयर विल बी 2 नोड्स. So, I think this will be very clear for an 3s orbital. Likewise, you can draw the curve of 3p, 3d, 3 or any orbital you can draw the curve. अगर आप 3p का कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हैं, 3p का कर्व, तो व्हाट विल बी रेडियल नोड? n विल बी 3 and value of l is equal to 1. So, radial node will be n minus l minus 1. That is 3 minus 1 minus 1. So, that will be 1. So, there will be one radial node and the graph will be like this. That is 4 pi r square into dr psi square versus radius. You will get graph like this. So, there will be node. So, I think you can now draw the graph of any of the orbital by this concept. You have to find out the radial node. Find out the radial node where it gives the probability of finding electrons is maximum at what radius. So, likewise you can draw the any orbital's probability graph versus its distance. So, I think this point is very clear to you, and in the next lecture we are going to discuss, or we will discuss what will be the shape of orbitals. Okay. So, I think today's lecture is quietly discussed in briefly or details. Okay. So, in case of any query regarding this, you can ask me in the comments. You will get the appropriate answer for the same. Okay. So, by tomorrow we will see the another point. Okay. Thank you very much.